Hello students, right now I am going to discuss company accounts. This is your second class related with company accounts. As you all know, in our previous class we discussed about the basic topics related company accounts. Now in today's class I am going to discuss some important facts related to company accounts. So basically we all know that shares are payable in installment. Okay, you must remember that thing, shares always pay in installment basis. The first installment name application. Okay, second one allotment, and the third one calls. There may be one call or two or three calls. So basically, instead of receiving the lump sum amount, company can issue its shares to receive the amount in installment. Amount can be received the following manners. That manner is application, allotment and calls. Now the application means these are the starting point of issue of share of the capital. Company invites the public through the prospectus to subscribe its shares. Student must remember that application money cannot be less than 25% of the issue price. So you should remember that thing. Application money cannot be less than 25% of issue price. Okay, so you must remember that thing. Next one is allotment. The distribution of share to applicants is known as allotment. Now the application already done. Next one is allotment. The distribution of share to applicants is known as allotment. When an issue of new share is allotted to the subscriber, if shares have not been oversubscribed, an applicant will receive all the shares. For example, if any shareholder apply for 100 shares and he get 100 shares, then this is a normal case. But any shareholder who apply 100 shares but he get 80 shares, in that case this is case 1 and this is case 2. So always remember, if the share have not been oversubscribed, an applicant will receive all the shares. In the first case, he has applied for, otherwise the shares will be allotted on a pro rata basis. In that case, this case 2 or 120 shares, he applied for 120 shares but the actual share will be 100. In that case both the case will be pro rata case. Pro rata case मैं बाद में बोलूँगा ये केस क्या है और कैसे ये केस को हम लोग हैंडल करेंगे, मगर ये नॉर्मल केस को हम लोग पहले देख लेते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज कॉल. Always remember, a company can ask its shareholder at any time during the lifetime of the company to pay the whole or part of the balance remaining unpaid. Means in application the person or the shareholder will pay some money. In allotment they will say pay the 70% of that whole amount, and last one in calls that shareholder will pay the remaining part. So that three part
यानी एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल क्या है, वन काइंड ऑफ इंस्टॉलमेंट है। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन बोलेंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट बोलेंगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट को कॉल बोलेंगे, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। ओके, सो यू शुड रिमेंबर दैट थिंग। नाउ जर्नल कैसे हम लोग तैयार करेंगे, अच्छी तरह से देख लेना और अच्छी तरह से ये रट लेना। इसमें क्या लिखा है देखो, व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, इन दैट केस हम लोग जानते हैं जब पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट होता है टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी दिस इज द रिसीव एंट्री। नेक्स्ट वन, व्हेन एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, दिस इज ट्रांसफर एंट्री। इन दैट केस एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, एप्लीकेशन से हो रहा है। कौन सा एप्लीकेशन से, जो रिसीव किया था शेयर होल्डर ने, पैसा रिसीव किया था वो एप्लीकेशन में उसका एंट्री हुआ था, वो एप्लीकेशन से अभी कैपिटल में जा रहा है। तो पहला क्या एंट्री हुआ, आर, इसके बाद क्या हुआ, टी, यानी रिसीव, इसके बाद ट्रांसफर। नेक्स्ट में क्या एंट्री होगा, व्हेन एप्लीकेशन मनी इज ड्यू, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये ट्रांसफर का एंट्री हो गया, इसको ड्यू भी बोल सकते हैं हम लोग। व्हेन एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अभी रिसीव का एंट्री हुआ है। इसके बाद व्हेन कॉल्स इज ड्यू, इसके बाद ड्यू का एंट्री। लास्ट वन इज रिसीव एंट्री। सो मैंने क्या बोला, पहले है रिसीव एंट्री, मैं लिख लेता हूं, व्हेन एप्लीकेशन, उस समय पहले रिसीव, इसके बाद ड्यू। जब अलॉटमेंट, पहले ड्यू, इसके बाद रिसीव्ड। जब कॉल्स, पहले ड्यू, इसके बाद रिसीव्ड। यानी सिर्फ फर्स्ट केस में देखो, एप्लीकेशन के केस में पहले रिसीव हुआ है, मगर बाकी केस में रिसीव लास्ट में हुआ है। अच्छा, रिसीव का एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट टू कॉल। अभी देख लो एक बार, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, रिसीव का बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, लास्ट में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सो हम लोग क्या देखे कि अगर रिसीव का एंट्री होगा तो रिसीव का एंट्री ऐसे होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स। अभी ड्यू का जब एंट्री होगा तभी शेयर एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट ऑब्लिक कॉल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसके नीचे क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने क्या बोला, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स सब डेबिट होके कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। यही सिर्फ फॉर्मूला है। जब ड्यू का एंट्री होगा देखो अच्छी तरह से, एप्लीकेशन डेबिट कैपिटल क्रेडिट, अलॉटमेंट डेबिट कैपिटल क्रेडिट, फर्स्ट कॉल डेबिट कैपिटल क्रेडिट। सो मैंने क्या बोला, फर्स्ट एंट्री रिसीव होगा जब हम लोग एप्लीकेशन, इसके बाद ड्यू, इसके बाद ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। ओके, तो ये चीज याद रखना, ये मन में घुसा दो ये चीज कि पहला है एप्लीकेशन के टाइम में रिसीव, इसके बाद ड्यू, इसके बाद ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव्ड। अगर कॉल दो होगा, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, ऐसा अगर होगा उस समय भी हम लोग ड्यू रिसीव ही लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ऐसी टाइप ऑफ क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, मगर ये बेसिक क्वेश्चन है। इसको प्रॉब्लम लिख लो, वीडियो को पॉज करो, इसको उठाओ कॉपी में, इसके बाद शुरू करो। मैं हमेशा वीडियो में, हर एक वीडियो में बोलता हूँ एक चीज कि वीडियो को पहले पॉज करो, उसको उठाओ पहले कॉपी में, इसके बाद शुरू करो उसका आंसर मेरे साथ साथ। ओके,
अच्छा, और एक चीज़ नीचे एक चीज़ मैं बोल के देता हूँ कि शेयर एप्लीकेशन जो है वो नेचर क्या है, उसका नेचर पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि किसी के नाम से हो रहा है। अलॉटमेंट भी पर्सनल, प्रीमियम शेयर प्रीमियम भी, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी पर्सनल है, और शेयर कैपिटल भी पर्सनल। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन का मैं बात बोल रहा हूँ। शेयर एप्लीकेशन कौन से नेचर का है, तुम लोग बोलोगे पर्सनल। ओके, तो ये चीज़ याद रखना, नेचर ऑफ अकाउंट्स। और एक चीज़, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, जैसे कि इसमें देखो, VK Limited company was incorporated with an authorized capital at 80,000 divided into shares 80 each. It offered to the public to subscription 600 payable from the follows on application 6, on allotment 4, on first call 5, on second call 5. These are the price of each installment. Total is 6 plus 4 plus 5 plus 5. Okay. Share issued in expenses paid to company 4,000. This is very important line. किसी किसी क्वेश्चन में दिया देते हैं, वो क्वेश्चन में अगर नहीं दिया भी होगा तब भी हम लोग कुछ सोचेंगे, अगर दिया होगा तो इसके बारे में थोड़ा सा अलग से सोचेंगे। द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक एंड एप्लीकेशन मनी ड्यूली रिसीव्ड ऑन टाइम। द डायरेक्टर मेड द अलॉटमेंट ऑन टाइम, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ओके, सो कैसे हम लोग शुरू करेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं। कि इसका वैल्यू कितना है 5, इसका वैल्यू कितना है 10, टोटल 6 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। अभी देखो हर एक शेयर का प्राइस कितना था, 20 था ना, इसमें 20 है, तीनों को सभी को ऐड करके 20 आया है। तो एक बार चेक कर लेंगे हम लोग हमेशा क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, इंस्टॉलमेंट में जो पैसा दिया गया है उसके साथ वो जो पैसा इसमें क्वेश्चन में गिवन है, वो क्वेश्चन में गिवन है, ये पैसा सेम है या नहीं है। कैसे समझेंगे, शेयर 20 ईच, ये ऐसा लिखा होगा, ठीक है। सो कितना ऑथराइज्ड कैपिटल है 80,000 ऑथराइज्ड कैपिटल, मगर पब्लिक को लिए छोड़ा कितना 600 शेयर्स, 600 शेयर्स पब्लिक के लिए छोड़ा। बेसिकली ये चीज याद रखना। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन, इसके बाद लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, इसमें होगा डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, रुपीस का सिंबल, ये देना मत भूलना। ओके, मैंने क्या बोला था कि पहला एंट्री क्या हो सकता है हम लोगों का, पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, इसके बाद होगा तुम्हारा ड्यू का एंट्री। पहले देख लो एक बार अच्छी तरह से, पहले क्या एंट्री रिसीव, इसके बाद ड्यू, इसके बाद ड्यू रिसीव। तो इसमें पहले रिसीव का एंट्री मारेंगे, यानी लिखेंगे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है प्राइस, 600 शेयर है, देखो अच्छी तरह से क्वेश्चन में ये चीज़ बोला गया है, 600 शेयर्स पेएबल। इसको मत देखना, ये रुपीस में है, कितना शेयर छोड़ा गया है ये देखो अच्छी तरह से, ये लाइन पढ़ो। इट ऑफर्ड टू द पब्लिक सब्सक्रिप्शन फॉर 600 शेयर्स। हर एक शेयर का प्राइस कितना है, अगर एप्लीकेशन के बारे में बोलेंगे तो 6 रुपीस है। सो ये लिखा हुआ है 600 इंटू 6। ओके, कितना है प्राइस 3,600। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। नरेशन लिखना मस्ट है, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है नरेशन को छोड़ देता है, इसके लिए उसका नंबर भी कम चला आता है बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद ये हो गया तुम्हारा क्या एंट्री, रिसिप्ट का एंट्री। इसके बाद ड्यू का एंट्री होगा। ड्यू का एंट्री मैंने क्या बोला था कि ड्यू का एंट्री जब लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, इसमें ही ऐसे ही लिखेंगे शेयर
application account debit to share capital account. What is the value? The value is same, 600 share into rupees 6. 600 share into rupees 6. So what is the money? 3600. 3600 being application money transferred to share कैपिटल अकाउंट. ओके, बंद कर दो. इसके बाद दोबारा से हम लोग कहाँ पे जाएंगे? हो गया एप्लीकेशन का काम ख़त्म, अभी हो गया. अभी अलॉटमेंट में जाएंगे. अलॉटमेंट में चले जाओ. उसमें क्या एंट्री मारेंगे? पहले ड्यू का एंट्री. ओके, देखो ये जो ड्यू मैंने लिखा, ये ड्यू ना लिख के हम लोग ट्रांसफ़र लिखते हैं. बेसिकली ट्रांसफ़र है, मगर ड्यू का सेम है इसलिए मैंने ड्यू लिखा. ड्यू का जो जर्नल है वही सेम ही है इसके लिए. मगर ये याद रखना, एप्लीकेशन का ट्रांसफ़र होता है, इसके बाद ड्यू का एंट्री होता है. सो अभी क्या लिखेंगे? ड्यू का एंट्री सेम. शेयर एप्लीकेशन उस जगह में लिखा था, अभी लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. व्हाट इज द वैल्यू? 600 शेयर इंटू व्हाट इज द प्राइस? 4 रुपीज. व्हाट इज द प्राइस? हियर इट इज रिटन 4 रुपीज. एप्लीकेशन का 6, अभी है 4. वैल्यू कितना होगा? वैल्यू होगा 2400. 2400. व्हाट इज द जर्नल? सॉरी, व्हाट इज द नरेशन? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू. बंद कर दो. इसके बाद चले जाएंगे हम लोग रिसिप्ट का एंट्री मारने के लिए. कौन से? अलॉटमेंट का. डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. बहुत ही ईजी है, शेयर बहुत ही ईजी है. 600 इंटू 4. 600 इंटू 4 कितना है? 2400. 2400. व्हाट इज द नरेशन? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट. मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट. बंद कर दो. अभी हम लोग, मेरे पेज ख़त्म हो गया इसलिए सेकंड पेज में मुझे चला गया. इसमें देखो मैंने लास्ट क्या एंट्री मारा था? रिसिप्ट का एंट्री क्या किसका था? अलॉटमेंट का था. अभी हम लोग अलॉटमेंट भी ख़त्म हो गया. अभी अच्छी तरह से देखो. अभी फर्स्ट कॉल में जाएंगे. फर्स्ट कॉल में कितना प्राइस है? 5 रुपीज़. शेयर तो सेम ही रहेगा 600. सो एंट्री क्या होगा? शेयर ड्यू का एंट्री. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. 600 into the price is 5, यानी 3000 रुपीज़. ओके, बीइंग कॉल मनी ड्यू. बंद. इसके बाद रिसिप्ट का एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. व्हाट इज द मनी? 600 इंटू 5 यानी 3000. ओके, सो ये हो गया. और रुको. बीइंग कॉल मनी रिसिप्ट. ओके, इसके बाद एंट्री होगा ड्यू का. दोबारा से किसका? लास्ट जो मैंने देखो लिखा है सेकंड कॉल में, वही एंट्री. सेम ही चीज़, ड्यू का एंट्री यानी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट 600 इंटू 5, सो 3000। एक बार देख लेते हैं 5 था या नहीं था। देखो इसमें भी 5 था। ओके, तो इसके बाद 5 मिनट। ओके, तो उसका एंट्री हो गया अभी। बीइंग सेकेंड कॉल मनी ड्यू। इसके बाद रिसीव का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट 600 into 5, 3000 being call money received। ओके, इसके बाद तुम्हारा ड्यू हो गया, ये ड्यू एंट्री का भी हो गया। अभी लास्ट में देखो एक चीज़ क्वेश्चन में बोला गया है, वो टेक्निकली बोला है। ये चीज़ हर एक क्वेश्चन में नहीं दिखा देता, तो ये चीज़ याद रखना। शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड बाय द कंपनी ₹400। ये शेयर इशू एक्सपेंसेस क्या है? बेसिकली शेयर इशू करने से समय कुछ एक्सपेंसेस बियर करना पड़ता है, वो कंपनी पेड कर देता है। अगर ये कंपनी पेड करता है तो कंपनी का मामला है। इसके लिए हम लोग एंट्री एक देंगे, एक्सपेंसेस का जो एंट्री है वो देंगे। वो क्या है? शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड 4000 बंद कर दो। ओवरऑल हम लोगों का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये मैंने क्या बोला, ये जो तुम लोगों के साथ मैंने ये जो मैंने शेयर किया, ये थंब रूल है। इस थंब रूल को याद रखना, एग्जाम से पहले भी याद रखना। पहले रिसिप्ट, इसके बाद ट्रांसफ़र, उसको हम लोग ड्यू बोलेंगे याद रखने के खातिर। इसके बाद ड्यू रिसिप्ट, ड्यू रिसिप्ट, जितना कॉल हो जाए। इसके बाद और एक कॉल है, ये सोचो कि फर्स्ट कॉल के लिए है, ये रिसिप्ट, ये सेकंड कॉल के लिए होगा, ये अलॉटमेंट के लिए है और ये एप्लीकेशन के लिए होगा। ठीक है, तो ये चीज़, ये थंब रूल याद रखना। और मैंने जो करवाया उसको अच्छी तरह से रेडी रखना, क्योंकि नेक्स्ट दिन थोड़ा सा टफ और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम लोग धीरे धीरे जाएंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाय।